تو باپ ہوتا ہے نا، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے آپ کو پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله إلى آخر الآية. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خطبہ مصنوعہ کے بعد آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیت کی تشریح و توضیح سے پہلے یہ جان لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو فطرت سلیمہ پر یعنی توحید پر پیدا کیا ہے. میں آج کے جمعہ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ خود نیک عمل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، ان کے پاس نیک اعمال نہیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ توحید اور ایمان جیسی جو قیمتی دولت ہے، جو تمام نیک اعمال کی بنیاد اور اساس ہے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، اور اس پر ترفع یہ کہ شرک میں ملوث ہوتے ہیں. نماز کے لیے کہا جائے، کسی نیک کام کے لیے کہا جائے، کسی اچھے کام کے لیے کہا جائے، کسی ایک رکن پر اسلام کے عمل کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، ہمارے یہ ہیں، ہمارے فلاں ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، یہ سب ہم کو نجات دے دیں گے، ہمیں نجات دلوا دیں گے، ہم نجات پا جائیں گے. اسی غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. اور غلط فہمی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیزیں سمجھیے، اگر انسان بذات خود موحد نہیں ہے، انسان کے پاس بذات خود ایمان کی دولت نہیں ہے، تو پھر اسے کوئی بھی شخص فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ نجات نہیں پا سکتا ہے. نجات اگر ہے تو کس کے اندر ہے؟ نجات ایمان کے اندر ہے، نجات توحید کے اندر ہے. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کے خاندان میں، آپ کے دوست احباب میں
یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں یہ ہمیں نجات دلوا دیں گے، اور آپ اعمال سے خالی ہیں، آپ کے اندر توحید نہیں پائی جا رہی ہے، آپ کے اندر شرک پایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں آپ کو نجات نہیں ملنے والی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، تذکرے سے بات شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، بہت سے آزمائشوں سے گزرے، بہت سے آزمائشوں سے گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نبی نہیں بنے تھے، ابھی نبوت جیسی دولت انہیں نہیں عطا کی گئی تھی، اس وقت بڑے بے چین تھے۔ اپنے گھر میں اپنے باپ سے کہتے ہیں، ابا جان آپ ان معبودوں کی پرستش اور پوجا کیوں کرتے ہیں جو آپ کو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں؟ اپنے باپ کو روک رہے ہیں۔ باپ کو روکنے کے بعد باپ نے نہیں مانا۔ آپ کا باپ جو تھا وہ بت گھر تھا، بت بناتا تھا، اس کو بیچا کرتا تھا، فروخت کرتا تھا۔ کہا لأرجمنک، بہت مار ماروں گا تجھے، پتھروں سے ماروں گا، میں رجم کر دوں گا، یہاں سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر بار چھوڑ کر کے۔ کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ کہا ابا جان آپ کو سلام، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، میرا رب بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم والا ہے۔ یہاں پر سلام سے مراد وہ سلام نہیں جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ملتے ہیں کسی سے ملاقات کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں سلام سے مراد دوری ہے، جیسے کوئی کہتا ہے بھائی آپ کو دور سے سلام، یہ سلام یہاں پر ہے۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سلام سے مراد کسی مشرک کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ آپ سلام کرنے میں مشرک سے پہل نہیں کر سکتے ہیں، آپ آداب کہہ سکتے ہیں، یا بعض علماء نے لکھا ہے السلام علی من اتبع الہدی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خطوط بھیجتے تھے دوسرے ملکوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جملے لکھا کرتے تھے، السلام علی من اتبع الہدی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، ابا جان آپ کو سلام، میں جا رہا ہوں آپ کے لیے بخشش کروں گا۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے، مشرک، کیا مشرک کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں۔ دیکھیے ایک مشرک وہ ہے جو جس سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو جو بھی ہے بہرحال، ایک مشرک وہ ہے۔ ایک مشرک وہ ہے جو کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں فلاں آدمی شرک کے اعمال کرتا ہے، اسلام کہہ سکتے ہیں، لیکن فلاں آدمی فلاں بن فلاں مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے، یہ ہم اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ ہم اس کے پاس بیٹھ کر کے اس سے ہم بات چیت نہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر جہالت پائی جا رہی ہو سکتا ہے اس کے اندر تعویل پائی جا رہی ہو سکتا ہے اور کچھ پائی جا رہی ہو، تو جب تک ہم اس کے اوپر اقامت حجت، اتمام حجت نہیں کر لیں گے تب تک ہم نہیں کہیں گے مشرک ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے رشتہ دار، دوست و احباب، آپ نے ان کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد ان کو پوری دلیل دی، انہوں نے مانا، ماننے کے بعد بھی کہا نہیں ہم اسی پر کام رہیں گے، ان کا مسئلہ دوسرا ہے، ان کے لیے بخشش نہیں کریں گے۔ لیکن ایک عام انسان ہے، نہیں جانتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، سادہ لو ہے، تو علماء نے لکھا ہے وہ اسی طرح آتے ہیں کہ گویا کہ ان کے پاس دین کی تعلیم نہیں پہنچی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہم بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ مسلمان تھا، شرکی اعمال کچھ اس سے سرزد ہوتے تھے، لیکن اقامت حجت اس کے اوپر نہیں ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ انسان کیا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جو دعا کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کر کے اسے روک دیا، آپ اسے رک گئے، آپ اسے رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابو جان کے لیے دعا کرنے سے رک گئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام والد کا ہے، کافر تھے، مشرک تھے۔ بتانا ہمیں یہ ہے میرے بھائیوں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، اللہ کے نبی، اس کائنات کے اندر نبوت کا مقام بہت بلند ہے، سب سے بڑا نبوت کا مقام ہے، اور نبیوں میں بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا لقب دیا۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے ایک بیٹا اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ کہتے ہیں
कि हम फला 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 के वसीले से चले जाएंगे, जन्नत में नजात पा जाएंगे। सुने ध्यान से, क़यामत का दिन होगा, सारी मखलूक वहां पर होगी। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से मुलाकात करेंगे। उनका बाप उस वक्त कहेगा, अब्बा जान, अरे बेटा, तुम्हारा जो दिन था, जो तुम जिस चीज की तुमसे दावत देते थे, मैं कबूल करता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े परेशान होंगे, अल्लाह ताला से कहेंगे, अरे अल्लाह, तेरा वादा था कि तू मुझे दलील और रुसवा नहीं करेगा। इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई क्या हो सकती है कि मेरा बाप तेरी रहमतों से दूर हो, तेरे कर्म से दूर हो। बड़ा अजीब मामला होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप हाजिर होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, इब्राहिम, जरा अपने नीचे देखो। नीचे देखेंगे तो उनके बाप को एक जानवर की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा और फरिश्ते घसीट करके जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। मेरे भाइयों, ये कोई वाकया, कोई किस्सा और कहानी नहीं है, ये सही हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस तरह का वाकया पेश आएगा। हम बताना ये चाहते हैं इस वाकये से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बरगुज़ीदा नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर आपको आजमाते आजमाते बिल्कुल निखार दिया। अल्लाह ने वादा किया कि हर तरह से आपकी इज्जत अफजाई की जाएगी, आपको हर तरह से नवाजा जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन उसके बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को बचा न सके। वो कह सकते थे उनके बाप, मेरा बेटा नबी है, मैं उसका दामन पकड़ करके चला जाऊंगा जन्नत के अंदर। नहीं, जब तक आपके अपने अंदर ईमान की दौलत नहीं होगी, जब तक आपके अपने अंदर तौहीद की दौलत नहीं होगी, जब तक आप खुद सही और सालिम नहीं होंगे, जब तक आप खुद सीधे रास्ते पर नहीं होंगे, तब तक आपको किसी का वास्ता, किसी का वसीला आपको फायदा नहीं देगा। आपको पहले अपने अंदर सुधार पैदा करनी है, आपको पहले अपने आप को देखना है, आपको पहले अपने आप की इस्लाह करनी है, अपने अंदर तौहीद की दौलत लानी है, अपने आप को ईमान की दौलत से मालामाल होना है। उसके बाद तब जाकर के दूसरी चीज आपको फायदा दे सकती है। बहुत सी मिसालें हैं। एक मिसाल लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की है। आपने बारह सुना होगा, भी नबी थे। और याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद जिनका मकाम और मर्तबा होता है वो अंबिया का होता है। इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर नबी से बढ़ करके कोई वली नहीं होता है। आप कहते हैं फला वली, वली की भी तारीफ इंशाल्लाह की जाएगी किसी मौके पर। अंबिया से बढ़ करके कोई ना नेक होता है, ना मुत्तकी होता है, ना अल्लाह की निगाहों में महबूब होता है, ना उनसे ज्यादा किसी की दुआएं सुनी जाती हैं। ये अंबिया होते हैं। लूत अलैहिस्सलाम, जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, जितने लोग लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उतने लोग कामयाब हो गए। इल्ला मराता, कुरान के अंदर आता है, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के वो हलाक हो गई, उस अज़ाब के चपेट में आ गई। क्यों भाई? एक नबी की बीवी थी, नबी के मातहत में थी, नबी को सुकून पहुंचाने वाली थी, नबी का हाथ बटाने वाली थी, नबी के लिए खाना बनाने वाली थी, नबी के घर को सुकून पहुंचाने वाली थी। लेकिन क्या हुआ? जब अज़ाब आया तो मोमिनीन नजात पा गए, मोमिनीन को सुकून मिल गया, मोमिनीन को अल्लाह का अज़ाब नहीं पकड़ा। वहीं लूत, जिनकी वजह से अज़ाब टला, जिन पर ईमान लाने की वजह से लोग अज़ाब से बच गए, उन्हीं की बीवी अज़ाब के चपेट में आ गई, अज़ाब में गिरफ्तार हो गई। क्यों भाई? यही वजह है मेरे भाइयों, जो मैं समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं मैं? अपने अंदर तौहीद की दौलत पैदा करो, अपने अंदर ईमान पैदा करो। जो बिदआत हैं, जो खुराफात हैं, जो शिरकिया अफ़आल हैं, आमाल हैं, उनसे दूर रहो। अपने आप को एक सच्चा और पक्का मुवहिद मानो, तब आपको नजात मिलेगी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हलाक हो जाती है, अज़ाब से बच नहीं पाती है। आप तो कहते हैं फला का दामन पकड़ के मचल जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, हमें इबादत करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के रसूलों को जब इबादत से आजादी नहीं दी गई, आपको कैसे इबादत से आजादी मिल जाएगी?
कि हम फला के वास्ते से हैं, उनके जरिए से हम जन्नत में चले जाएंगे, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये नबी लूत अलैहिस्सलाम, ये सारे वाकयात कोई कहानी नहीं है। कुरान उठा करके आप देख लो, तफासीर देख लो, हदीसें देख लो। एक जो मोमिन होता है, जो मुवहिद होता है, जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होता है, जिसका इरादा आखिरत की जिंदगी को पाने का होता है, वो कहता बोले साहब हमें दलील दिखला दो, कुरान की आयत हमें बता दो, हम भी जाने, हम भी सीखें। आपकी तरह नहीं, हमारी तरह नहीं, कोई कुछ भी बताते हम उसको कैद करके उस पर अमल करते रहें। बात होनी चाहिए तो अल्लाह के फरमान की, बात होनी चाहिए तो अल्लाह के कुरान की, बात होनी चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस की। मेरे भाइयों, इस तरह जब हम बातें पकड़ेंगे, इस तरह जब हम बातें सीखेंगे, तो हमारे दिलों के अंदर ताजगी आएगी, हमारे दिलों के अंदर जो पदमुर्दगी है वो पदमुर्दगी दूर हो जाएगी, हमारे दिलों के अंदर बहार आ जाएगी, और मेरे भाइयों हम सच्चे और पक्के मुवहिद बन जाएंगे। तो जब तक इंसान खुद नेक ना हो, इंसान के अंदर खुद ईमान की दौलत ना हो, इंसान के अंदर खुद तौहीद की दौलत ना हो, किसी की कोई सिफारिश, किसी का कोई वसीला, किसी का कोई वास्ता, किसी का कोई पावर, किसी का कोई सोर्स उसको कभी फायदा नहीं पहुंचा सकता है, चाहे वो नबी हो और चाहे कोई और हो। याद रखो इस बात को, ये मैं नहीं, ये रब का कुरान कह रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कह रहा है। मेरे भाई याद रखो इस चीज को, आप खुद सही नहीं हो, आपके अंदर खुद तौहीद नहीं है, आपके अंदर खुद ईमान नहीं है, न कोई नबी, न कोई वली, न कोई फरिश्ता, न कोई पीर, न कोई मुर्शिद आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकता है, चाहे आप उसके घर के ही हो क्यों ना हो। आइए मैं आपको बताता हूं। नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को लंबी उम्र अता फरमाई थी। आपको अल्लाह ताला ने लंबी उम्र अता फरमाई थी, हत्ता कि कुरान में आता है फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। इतनी लंबी उम्र अता फरमाई थी कि सिर्फ 950 बरस तक तबलीग ही करते रहे। अगर अंदाजा किया जाए तो उम्मन अंबिया को 40 साल के बाद नबूवत दी जाती है। उम्मन अगर 40 साल ही हम मान लेते हैं तो कितना हो जाते हैं 990 साल उन्होंने उम्र पाई, कम से कम 950 बरस तक तबलीग करते रहे। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के उनका एक मकाम था, अल्लाह ने उनसे वादा किया था कि तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। तबलीग करते करते जब थक हार गए, सूरह नूह के अंदर है, आप पढ़ते होंगे कि अल्लाह मैंने अपनी कौम को खुल्लम खुल्ला भी पुकारा, छुपे तौर पर भी पुकारा, फलम यज़ीदुहुम दुआई इल्ला फिरारा, लेकिन है अल्लाह मैं जिस कदर उन्हें बुलाता वो दीन से तौहीद से दूर भागते, छुपके छुपके, और जब मैं बुलाता कानों में उंगलियां ठोस लेते कि नूह की बात मेरे कानों में ना आए। इस कदर थी, कितनी तकलीफें झेली। हम आप समझते हैं कि दीन की राह बड़ी आसान है, ये उलमा जो आपके सामने आते हैं और आधे घंटे 1 घंटे तकरीर कर देते हैं, समझते हैं याली में 1 घंटा तकरीर करके बस बाजी जीत ले गया। कितनी आसानियां इसके लिए हैं। इस 1 घंटे तकरीर के लिए मेरे भाइयों जो मेहनतें करनी पड़ती हैं, जो मशक्कतें उठानी पड़ती हैं, उसका अज्र कोई इंसान नहीं दे सकता है, न इंसान को उम्मीद है, उसका अज्र अल्लाह ही दे सकता है। अल्लाह से इसको उम्मीद है। ये दीन का रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए सूरह असर के अंदर आप देखते होंगे आखिर में क्या है, जो लोग ईमान लाए वो आपस में एक दूसरे को क्या वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत करते हैं, सच्चे दीन की वसीयत करते हैं, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करते हैं। क्यों? इसलिए कि जब आदमी हक पर रहेगा उसे परेशानियां आएंगी तो सब्र करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने फौरन कहा वतवासौ बिस सब्र, आपस में सब्र। जो भी नेक रास्ते पर रहेगा, जो भी अल्लाह वाला रहेगा, उसके लिए परेशानियां आएंगी, सब्र करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का वादा अल्लाह उसे गले रुसवा नहीं करे, होने देगा। जीत होगी तो उसी की होगी, कभी भी होगी। तो बहरहाल मैं बता ये रहा था कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ, और कश्ती बनाने के बाद में जो मोमिन है उनको सवार कर लो, जो मोमिन है, जो ईमान लाए हैं। यहां भी गौर से सुनिए, नबी से बढ़ करके बार बार मैं ये बात कहता हूं ताकि आपके जहनों में बैठ जाए ये बात, अल्लाह ताला के बाद जो बुलंद मकाम है इस कायनात के अंदर वो नबियों का है। नबी से ज्यादा नेक, नबी से ज्यादा ईमान वाला, नबी से बढ़कर के मुवहिद कोई नहीं हो सकता है। सबसे बड़े वलियों के वली वो होते हैं, अंबिया सबसे बड़े मुवहिद होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कश्ती बनाओ, कश्ती बना दी गई। सूखा था, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाने थे, भाई कश्ती कहां चलाएगा, सूखा है। बारिश होती, कहीं आसपास समंदर होता, नदी नाले होते तो बात समझ में आती कि कश्ती वहां चलाएगा, ये पागल हो गया है, कहां कश्ती चलाएगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया, उसके अंदर तौहीद की दौलत नहीं थी, ईमान की दौलत नहीं थी। मेरे भाइयों, बाप नबी है, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह की निगाहों में प्यारा है, अल्लाह ने वादा किया है कि नूह तेरी दुआओं को कबूल करूंगा,
उसका बेटा ईमान नहीं लाया, तो बाप होता है ना, वो कैसे देख सकता है कि मेरी निगाहों के सामने मेरे जिगर का टुकड़ा अज़ाब में मुब्तला हो जाए, हलाक हो जाए। कहा बेटा या बुनैया कम्माना वाला तकुम माल काफिरीन, ऐ मेरे बेटे आ जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ, हमारे साथ काफिरों में से ना हो जाओ। बेटा भी अल्लाह था, क्या था? अल्लाह था। कहा सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, अब्बा जान मेरी फिक्र मत करो, देखो पहाड़ देख रहे हो ना, पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। जाहिर सी बात है, इंसानी अक्ल यही कहती है भाई पानी कितना भी है, पहाड़ इतना ऊंचा होता है, कैसे पानी वहां तक जाएगा? लेकिन हर जगह इंसानी अक्ल काम नहीं आती है, हर जगह इंसान का अक्ल काम नहीं करता है। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, कहा बेटे आज अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन नहीं माना। कुरान करीम के अल्फाज है, आप पढ़ लो कुरान उठा करके, वहाला बैनहुमल मौज फकान मिनल मुगरकीन। क्या हुआ? तूफान आया, सैलाब आया, दोनों के दरमियान मौज हायल हुआ और उनका बेटा डूबने वाले में से हो गया, डूब गया। अल्लाह को पुकारा, ऐ अल्लाह इन्नबनी मिन अहली व इन्ना वअदकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन। ऐ अल्लाह मेरा बेटा मेरे खानदान में से है, मेरी फैमिली में से है, अल्लाह तेरा वादा बरहक है, अल्लाह इसको बचा ले। अल्लाह ताला ने फौरन फटकारा, डांटा, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तस्अल लिमा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाह ताला ने डांटा, अपने नबी को डांटा, कहा देखो नूह तेरा बेटा तेरे खानदान में से नहीं है, उसके जो अमाल थे अच्छे नहीं थे। नूह याद रख, दोबारा कभी ऐसी चीजों के बारे में सवाल न करना, न मांगना जिसका तुझे इल्म नहीं है, वरना तू जाहिलों में से हो जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम फौरन तौबा कर लेते हैं। मेरे भाइयों, बताना यहां पर यह है, आपके जहनों में यह बात नक्श करानी है, आपके दिलों में इस बात को रासिख करना है, जब तक इंसान खुद तौहीद वाला ना हो, ईमान वाला ना हो, आमाले सालिहा वाला ना हो, तब तक चाहे वो नबी का बेटा हो या नबी का बाप हो, नबी के खानदान का हो, नबी की बीवी हो, नबी के घर वालों में से हो, उसको कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती। याद रखो, कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती है। यहां नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम के सामने, आंखों के सामने डूब करके हलाक हो जाता है, अज़ाब में गिरफ्तार हो जाता है, जहन्नमी हो जाता है, दोज़ख के हवाले कर दिया जाता है। मेरे भाई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं बचा पाते हैं। एक नबी होकर के, अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी होकर के, अपने जो इंसान के दरमियान जो हकीकी रिश्ते होते हैं ना, बाप और बेटे का रिश्ता बहुत हकीकी माना रखता है, बहुत हकीकी माना रखता है बाप और बेटे का रिश्ता। इतना हकीकी माना है कि आखिरत के दिन के अंदर भी फुला बिन फुला कैसे पुकारा जाएगा। अल्लाह, इतना हकीकी रिश्ता है। ये नहीं कहा जाएगा कि फुला हो, बल्कि नाम के साथ बाप का नाम भी लिया जाएगा, इतना हकीकी रिश्ता है। जब एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के अजाब से अपनी आंखों के सामने डूबने से बचा नहीं सकता, और वो डूबना जहन्नम के हवाले होना है क्योंकि वो काफिर थे, तो मेरे भाइयों, एक छोटा सा मौलवी या कोई पीरो मुर्शिद, कोई बुजुर्ग जिसको हम वली कहते हैं या कोई और नाम देते हैं, अगर हमारे अंदर खुद कमी है, हमारे अंदर खुद तौहीद की दौलत नहीं है, हमारे अंदर खुद ईमान की दौलत नहीं है, तो मेरे भाइयों क्या वो बचा सकता है? अंदाजा करो, अपने गिरेबानों में झांक करके देखो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रब का कुरान कह रहा है। मैंने जो भी बातें आपके सामने पेश की है मेरे भाइयों, ये कुरान के हवाले से पेश की है। तो कैसे कोई कह सकता है हम अमल नहीं करेंगे, हम कुछ भी करें हम नजात पा जाएंगे, उनके वसीले से, उनके वास्ते से, उनके सोर्स से, उनके पावर से हम जन्नत में चले जाएंगे, नजात पा जाएंगे? कैसे ये मुमकिन है? नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए काफिर होने की वजह से, ईमान ना होने की वजह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को ना बचा पाए ईमान ना होने की वजह से। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ना बचा ईमान ना होने की वजह से। तो मेरे भाइयों, हमाशमा की क्या हैसियत है? हम और आप कहां के हैं कि दावा करने से इस तरह हो जाएगा? कुरान पढ़ो, कुरान और उलमा के बयान सुनो, तो कुरान के हवाले से सुनो या सही हदीस के हवाले से सुनो, तब हमारे ईमान के अंदर ताजगी पैदा होगी, तब हमारे दिलों के अंदर यकीन आएगा, तब हमारे दिलों के अंदर एक तरफ पैदा होगी कि हम भी नेक अमल करें, हम भी इसी तरह से पढ़ते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर साबित कदम रखे और ज्यादा से ज्यादा हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम व रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله اكبر